Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapit Mova. Today, in class 6, again, we are going into the day 9, in lecture number 9. So, today, we just going on to the whatever we discussed yesterday, that portion we covered up from the NCERT book. So, that exercise we covered first, and then after we go for the newer one. So first of all, in this NCERT book, पेज नंबर 118 to 121 यानी 118 से लेके 121 तक जो भी पेज है वो पेज को हम आज कंसिडर करेंगे और उसमें जो भी एग्जाम्पल्स दी है यू कैन ऑल्सो राइट इन योर बुक. सो this is also be helpful for the practice, isn't it? So let us move on it. This is your lecture number 8, so we can start from this day. So let us move on this class 6. So first of all, this is given into the page number 118. Now in this page number 118 is suggesting us that mark, you can also write with your book में आप लिख सकते हो साथ में. तो साथ में आपके जितने भी एग्जाम्पल हो जाए वो एग्जाम्पल्स यदि मैं उसको सॉल्विंग के लिए आपको दे जाऊँ देन यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write this particular examples in your book also. So in this NCERT, try this page number 118. Now in this we have to mark सम ऑफ द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे आपको मार्क करने. पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको नंबर लाइन पे मार्क करना है तब यू शुड यूज द पेंसिल. yesterday whatever the students is give me the answers of into the homework, all are draw this number line with the pen. No, but you should use the pencil for, and you can also use with the scalp. So this is must be clear whatever the number line you have to draw. So in this particular number line we have to mark only some of the numbers. First we have to mark -3. So we all know that अब हमें ये पता है कि -3 कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, 7 कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, -4 कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, -8 कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, -1 एंड -3 ये सभी को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो सेंटर पॉइंट को आप 0 से कंसीडर कर दो. जो भी पॉजिटिव है 0 की राइट साइड मेंशन करेंगे. मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक ही है, वो है 7. बाकी सभी 0 की लेफ्ट साइड आएगा. -1 है, -3 है, -4 है, -8 है. तो ये सब चीज आप मेंशन कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक दैट वे. तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके अंदर आ सकता है कि represent some of the numbers on the number line, then you can easily put it like that way. Okay, so positive integer move to the right of the 0 and negative integer move to the left of the 0. Okay, ये तो easy है इसलिए आप उसको ऐड कर सकते हो. So this particular example also be right in the portion of that exercise. Okay, so let us move on to the another one. Here also given from the NCERT book, that is the exercise 6.1. So this 6.1 पेज नंबर 121 का क्वेश्चन नंबर 5 है. वो क्वेश्चन नंबर 5 भी कैसे मेंशन करना है, that is also be available in the part of A. So following is the list of temperature of 5 places in the India on a particular day of the year. Places here given that Siachen, Shimla, Ahmedabad, Delhi and Srinagar. Temperature is given that write the temperature of this place in the form of integer in the blank column. जो इंटीजर फॉर्म है यहाँ पे अभी आपको आंसर दे दिया गया है, बट यू हैव टू फॉलो दिस ब्लैंक कॉलम दैट इज गिवन इनटू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1.
अभी आपको ऐसा बोला गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से बिलो है, मतलब हमें इसको इंडिकेट करना है इंटीजर फॉर्म में -10, क्योंकि वो 0 से कम है। शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस है, बिलो 0 डिग्री, तो वो भी -2 से इंडिकेट होगा। अहमदाबाद का एबो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो पॉजिटिव में आएगा, यानी 30 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस एबोव है 0 से, मतलब वो भी पॉजिटिव आएगा 20 डिग्री सेल्सियस, वो होगा दिल्ली का। एंड लास्ट वन श्रीनगर का है, दैट इज कंसिडर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। सो बिलो है, मतलब वी हैव यूज्ड -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चंस इजी था। अब उसी में ही क्वेश्चन नंबर 5 में बी क्वेश्चन है, following is the number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. आपको बताया गया कि सियाचिन है, वो कहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, शिमला कहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, श्रीनगर कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली कहाँ पे हो रहा है, और अहमदाबाद कहाँ पे। आपको नंबर लाइन पे देखना है, यही चीज़ आपको ड्रॉ करनी है अपनी बुक में, और बाद में नीचे लिखना है कि सियाचिन, मतलब वी हैव टू राइट डाउन दैट -10 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही लिखते जाना है। श्रीनगर है तो -5 डिग्री सेल्सियस, शिमला है तो वी कैन पुट -2 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली है तो 20 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद है तो 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही या तो आपको टेम्परेचर दिया गया है और आपको इंटीजर फॉर्म में लिखना है, या आपको प्लेस के नाम दिए गए हैं नंबर लाइन के ऊपर, उसके ऊपर से आपको टेम्परेचर फॉर्म करना है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में या एग्जाम में या WRT में आ सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अब सी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। आपको एक क्वेश्चन बताया गया है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाला टेम्परेचर कौन कौन से उसके नाम लिखने हैं और उसके प्लेस लिखने हैं। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से अबोव कौन कौन है, दिल्ली एंड अहमदाबाद, सो वी कैन राइट इज आंसर दिल्ली एंड अहमदाबाद, इजंट इट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज 6.1। इसके हमने 3 क्वेश्चन ABC देखे और एक ट्राई दिस जो 118 के ऊपर देखा। तो ये तीनों 3 और 4 चारों 4 एग्जाम्पल्स आज आप अपने होमवर्क में भी लिखेंगे, ओके, जो आज मेरे साथ अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो नॉट रिकॉलिंग और नॉट फॉरवर्ड, और समटाइम्स वी आर नॉट रिवाइंड द वीडियो को रिवाइंड भी नहीं करना पड़ेगा, और आप अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली यू कैन राइट इन योर नोटबुक। So let us move on to the another portion. अब हम दूसरे पोर्शन की ओर चलते हैं। अब दूसरे पोर्शन की ओर अंदर क्या है, सपोज हमें इंटरप्रिटेशन करना है कि इंटीजर्स को इंटरप्रिटेशन करो कि जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। सो हाउ कैन वी इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, दैट कंसेप्ट वी हैव टू गोइंग। So first of all, here consider that some of the portion that is displayed over here, integer on a number line. This is a concept of here. Negative integers are less than 0. हमें पता है कि negative integers 0 से कम होंगे. They are also less than positive integers, और वो positive integers से भी कम ही होंगे. So negative integers are placed to the left of 0 while positive integers are placed to the right of the 0. आपको 2 एरो रेड और ब्लू एरोज आपको दिख रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर, उसमें 0 से लेफ्ट साइड की और सभी नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और 0 के राइट साइड आपको पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और आपको मैंने कल भी बताया था कि नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो जैसे आप 0 से आगे चलते जाएंगे वैसे उसकी वैल्यू लोअर होती जाएगी, और यदि आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो 0 से आगे जैसे ही आप राइट साइड पे मूव होंगे सभी वैल्यू हायर होती जाएगी। 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3, ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी।
और यदि आप नेगेटिव साइड में जाएंगे तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी. ओके, सो वी कैन से दैट द नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर फ्रॉम ए लोअर वैल्यू टू ए हायर वैल्यू. लोअर वैल्यू से हम हायर वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ हाउ मेनी प्लेसेस अवे फ्रॉम 0 इज 2. अब आपको बताना है कि 0 से 2 कितने प्लेसेस पे है. आप 0 से 2 की पोजीशन देखो तो राइट साइड पे है. कितनी पोजीशन है? 2 पोजीशन है ना. 0 से 1, 1 से 2. वैसे ही आपको इंटीजर्स में इंडिकेट्स करना है. तो कितने प्लेस हो ये? 2. 0 से 1 एंड 1 से 2. सो हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 2 प्लेसेस. ये समझ में आ गया ना. ये तो बड़ा इजी चीज़ है, तो ये जल्दी से आपके माइंड में समझ में आ जाएगा. अब 0 से -2 करो तो क्या होता है? 0 से -1, -1 से -2. So we indicating that how much places is there? That is also be 2 places, but it is for the negative. Now what do you notice about the integer 2 and -2? अब 2 और -2 के बीच में आपने क्या इंडिकेट किया? अब देख सकते हैं कि 2 places left, that's why we got the -2, and 2 places right, that is called the positive 2. So both 2 and -2 are the 2 places away from the 0. We can say that they are the same distance from 0 in opposite direction. अब ये दोनों डायरेक्शन की कैसी हो गई? ऑपोजिट हो गई. अब आप देख सकते हैं कि -2 and 2 are called opposite of each other, while since the absolute value indicates distance irrespective of the direction, it is always positive. मतलब ऐसा कह सकते हैं कि -2 को हम यदि दो लाइन में इंडिकेटेड बाय द 2 साइंस, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लिखेंगे उसको, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेट्स होंगे. But if it is considered as a -2 and 2, then both are the opposite. So this is considered here that numbers -5, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू +5 होगी. 6 की -6 होगी, 7 की -7 होगी, -13 की +13 होगी. ऐसे हम कंसिडर कर लेंगे. जैसे कि -5 इज इक्वल टू 5, 6 को 6 कंसिडर करेंगे, 7 को 7 एंड -13 को 13. यानी दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू. जो हम नेगेटिव निकाल के उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू. Now we are going on to the which integers lies between -8 and -2. अब आप ऐसा देख सकते हो कि -8 एंड -2 के बीच में कितने इंटीजर्स है. तो आप देख सकते हो ना, -8 से -2 मतलब हमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होना है. तो -8 से आप एक एक स्टेप करते जाओ. 1 यानी -7, -6, -5, -4, -3 एंड -2. So how much move is there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here how many numbers? 5 numbers are there. Like that way. Integers that lies between -8 and -2 कितना हुआ? -7, -6, -5, -4 and -3. It's a very easy thing. अब आगे बढ़ते हैं. Which number will we reach if we move 5 places to the right of -3? -3 से आप राइट साइड की तरफ 5 प्लेसेस मूव हो तो कितना हो सकता है? -3 से आप मूव हो फर्स्ट में -2, फिर -1 यानी 2 प्लेसेस, 0 पे 3, 1 पे 4 एंड 2 पे 5. तो आपके पोजीशन के नंबर्स पे क्या रिप्रेजेंट होता है? पॉजिटिव 2. तो स्टार्ट एट -3, मूव 5 प्लेसेस टू द राइट, write the integer that is 5 place to the right of -3. -3 की तरफ आप 5 मूव होंगे तो आपका नंबर कौन सा मिलेगा? 2 मिलेगा. तो that is be also be easier things for you. अब 3 places to the left of -6. -6 से 3 places लेफ्ट साइड पे जाना है.
-6 से -7 1, -7 से -8 2, -8 से -9 3, तो वी गॉट -9 इज देयर। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इजी है और मेरे ख्याल से ये चीज़ समझने में भी बड़ी इजी रहती है। So this is one indication for you. Now we are going for the another points. चलो तो आज एक और चीज़ आपको बताता हूँ और एक एक्टिविटीज़ आज आपको होमवर्क में करनी है। वो होमवर्क में बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्या आपको करना है। एक फ्लैश कार्ड बनाना है आपको। A4 साइज़ का एक शीट पेपर ले लो आप, कोई भी A4 साइज़ का वाइट या आपके घर पे पड़ा हुआ कोई भी पेजेस आप ले सकते हो, बट ऐसा रखना कि वो ब्लैंक हो या जिसमें कोई लाइनिंग ना हो। So you can also use one A4 sheet of the paper, divide into 4 parts, 4 पार्ट्स, इक्वल 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो, मतलब एक लाइन कर दो। बीच में बराबर मिडल में उसके 4 पार्ट हो जाना चाहिए, मतलब डिवाइड इट इनटू द 4 पार्ट्स। टेक वन शीट ऑफ पेपर, A4 sheet, divide it into the 4 parts, write 4 word on each A4 like the sample shown in the next slide। अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके जैसे 4 वर्ड उसमें लिखने हैं। तो आपको कितने A4 साइज के पेपर लेने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बट एक पेपर में आपको 4 वर्ड लिखने हैं। राइट इन बोल्ड विथ ए थिक ब्लैक स्केच पेन और मार्कर। आप मार्कर हो, स्केच पेन हो, कोई भी हो, उससे आपको अच्छी तरह से अच्छे हैंड राइटिंग से आपको ये 4 नंबर्स लिखने। यूज द लेफ्ट ओवर शीट टू प्रिपेयर अदर फ्लैश कार्ड्स। तो आपको जो फ्लैश कार्ड्स बनाने हो ऐसे बनाने, बाद में उसको कट करना है। ओके, तो कैसे करना है, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आपको यहाँ पे 4 नंबर्स दिख रहे हैं। आपको पूरा एक A4 शीट का पेज लेना है और A4 शीट का पूरा 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देना है, यानी लाइन कर दो आप। ये लाइन पेंसिल से करेंगे, पहले आप पेंसिल से करके उसमें 4 नंबर्स लिखेंगे और ये नंबर, ये जो डिजिट नंबर, आफ्टर एंड ग्रुप, ये 4 जो वर्ड आपको दिए गए हैं वो एक ही शीट में 4 पार्ट में लिखना है। ओके, तो ये 4 का एक शीट हो गया आपका, डिजिट, नंबर, आफ्टर एंड ग्रुप। जैसे ही एक शीट कंप्लीट हो गई, ऐसे ही दूसरी शीट आपको बनानी है, दूसरा पेज लेना है, उसको भी 4 में कन्वर्ट कर दो, उसमें भी 4 लिखना है। काउंट, बिफोर, एक्सपांड एंड अरेंज। किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और सभी का मेजरमेंट है वो एक तरह सा ही होना चाहिए। मतलब आप जो एक शीट ले रहे हैं उसके 4 जैसे ही पार्ट आपने डिवाइड किए एक शीट को 4 पार्ट में, वैसे ही दूसरी शीट को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दो और उसमें भी 4 वर्ड लिख दो। ये स्केच पेन से आप लिख सकते हो, बोल्ड में लिख सकते हो, अच्छे हैंड राइटिंग में लिख सकते हो, अलग अलग कलर से भी आप लिख सकते हो। इज इट ओके? अब ये दूसरी शीट हुई, दूसरी शीट में भी ये 4 वर्ड लिखेंगे। तीसरी शीट यानी तीसरा पेज आपको A4 साइज का लेना है, उसमें इंक्रीजिंग, असेंडिंग, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इतना लिखना है। इसके भी 4 पार्ट इक्वल रखेंगे और चारों 4 पार्ट में ऐसे ही लिखेंगे स्केच पेन से अच्छी तरह से हैंड राइटिंग में। और चौथा जो आपका पार्ट, यानी 4 शीट को आप 4 पार्ट में अलग अलग बना के यही राइटिंग जो मैंने वर्ड दिए है वही वर्ड इसमें लिखने, स्मॉलेस्ट, लिस्ट, डिसेंडिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, यदि आपको कुछ छूट गया है तो आप रिवाइंड करके वीडियो देख के पहले से कौन कौन से 4 शीट बनाने और चारों में 4-4 वर्ड लिखने। 4 शीट, 4 वर्ड इन ईच शीट। समझ में आ गया? अब जो भी मेजरमेंट रखोगे वो इतना नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि आपको बाद में उसको कट करना है। याद रखो, उसको सीजर से कट करके आपको एक अलग शीट, आपके पास यदि कोई बोर्ड हो या आपके पास ऐसी सीट हो
वो शीट के ऊपर आप लगा सकते हो। तो ये 4 यानी 4 4 16 वर्ड हुए। ये 16 वर्ड को अलग अलग आप कट करेंगे बाद में, और कट करके फाइनली ऐसे शीट पे लगाएंगे। समझ में आ गया? जो आपने 4 लगाए वैसे 4 की सीक्वेंस, 4 की रो और 4 की कॉलम में ऐसे अलग अलग दिखे वैसे आपको एक शीट पेपर में लगा देना है, और वो फोटोग्राफ्स आज होमवर्क में मुझे भेजना है। समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि आगे कुछ भी पता न चले तो आप अपनी A4 शीट का पेज कोई भी ले लो। वाइट पेपर हो तो बहुत अच्छा है। यदि कोई वाइट पेपर आपके पास नहीं है तो लाइनिंग वाले पेपर यूज़ नहीं करना, वो ब्लैंक पेपर ही में ही यूज़ करना। और चारों चार का ये टोटल 16 फ्लैश कार्ड बनेंगे, और फ्लैश कार्ड कोई एक शीट पे आप लगा के नीचे अपना नाम और स्टैंडर्ड्स लिख के आज मुझे फोटोग्राफ्स पुट करना है। जिसका भी सुपर्ब होगा आई विल ऑल्सो पुट इन टू द आवर ग्रुप में भी मैं ये चीज़ आज की एक्टिविटी रखूँगा। तो अच्छी तरह से ये पूरी शीट बना के हैंड राइटिंग में मार्कर पेन का यूज़ करो या अपनी स्केच पेन का यूज़ करो। बट आपको यदि किसी का हेल्प लेना है, अपने ब्रदर सिस्टर का हेल्प लो, कुछ भी करो, बट यू हैव टू मेक वन superb flashcard for us, तो we can also making like that way। और इसका अच्छी तरह से नीचे अपना नाम और स्टैंडर्ड्स के साथ ये मुझे आज ये फोटोग्राफ्स आपको होमवर्क में भेजना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक की प्रोसीजर है मैंने आपको बता दी है आज। विदाउट फेलिंग यू कैन ऑल्सो सेट दिस इज कंसिडर्ड एज ए वन एक्टिविटी। आज आपकी एक एक्टिविटी भी कंसिडर्ड होगी। जिसका भी बेस्ट फ्लैश कार्ड बनेगा उसको हम ग्रुप में भी रिलीज करेंगे। ओके, so I hope so that today we have to cover this one activity, and we are also using some number line concept, so you read hard and you have to recall each and everything. Thank you very much for being with us. We will meet very soon in the next lecture. Thank you very much.